In this lecture we are going to start with the next unit, that is fifth unit, curves and fractals. So in curves, introduction, interpolation and approximation, blending functions, B-spline curve, Bezier curve, these are the things that we are going to see in the curves. And in fractals, introduction, classification, fractal generation, snowflake, Dirac curve, Hilbert curve application, these are the things that we are going to see in the fractals part. So this unit is divided into two parts, curves and fractals. So firstly we are going to start with the curves. Now what is curve? The introduction of the curve that we are going to see. Okay, so we know that the real world objects are not always made up of the basic primitives. What are the basic primitives that we have saw already? That is line, curves, ellipse, square. So सभी जो भी object है in real world that we cannot always made up of the primitives, basic primitives, like, right? So usually natural objects are very irregular in shape and size. It may not be possible to describe such shapes with standard mathematical formulas. जैसे हम लोग सर्कल के लिए, लाइन के लिए या फिर स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करके उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सर्टन शेप्स जिसे हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, राइट? सो थ्रू द कर्व जनरेशन प्रोसीजर it is possible to model any random shape. However, the process of curve generation requires detailed mathematical analysis of object shape. The process is very complex. So using the curve generation procedure we can describe, or we can it is possible to model any random shape. ठीक है, तो अभी वो कैसे होगा, मीन्स हाउ वी कैन define the curve then. So if we consider there are various points in the space, और इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर अगर हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर में हम लोगों ने देखा कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट? सो अभी इन टर्म्स ऑफ अगर हमें कंप्यूटर बोला जाए तो रैंडम शेप हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वी हैव टू कंसीडर द सेट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, तो एक सेट ऑफ पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करेंगे. सपोज दिस आर द सेट ऑफ पॉइंट्स, these are the set of points that we have considered, and we'll join that point from one end to the another end, right? So we are going to start from joining the point from here up to the end of that point. So whatever the shape comes, that shape we called it as a curve. ठीक है, और जैसे हम लोग अगर कोई भी एक जगह से हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं और कोई भी डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं या फिर कोई भी शेप हम लोग बनाते हैं, जब तक हम लोग उसे स्टॉप नहीं करते हैं तब तक स्टार्ट टू एंड हम लोग अगर विदाउट एनी गैप अगर उसे ड्रॉ करते हैं तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व ही बोलेंगे. Clear? So the set of points join with respect to the line that we called it as a curve. Clear? तो अगर गैप नहीं है तो भी उसे कर्व बोलेंगे. अगर हम लोग 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं और 2 पॉइंट्स को हम लोग एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, सो वेदर दिस लाइन कैन बी कॉल्ड एज अ कर्व. सो यस, दिस लाइन आल्सो कॉल्ड एज अ कर्व. सो क्लियर? So likewise, if we join, if we start from any point and without any gap, if we draw any type of shape, that we call it as a curve. So whether this triangle is called as curve, whether this square is called as curve, whether this rectangle is called as curve, yes, because we are starting from any one point and we are reaching to other point without any gap, right? So that's why this triangle, square and rectangle also can be called as the curve. Clear? So clear what is curve? Now curve representation. So there are 3 types of curve representation, that is explicit form, implicit form and
पैरामेट्रिक फॉर्म. नाउ एक्सप्लिसिट फॉर्म मीन्स व्हाट? एक्सप्लिसिटली जो डिफाइन किया जाता है, दैट इज़ अलग से जो डिफाइन किया जाता है, दैट इज़ नथिंग बट द एक्सप्लिसिट फॉर्म. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालते हैं या फिर फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गया. लाइक y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन हो गया, राइट. सो दिस इज़ द एक्सप्लिसिट फॉर्म. अगर हम लोगों को लाइन का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप निकालना है, लाइन का स्लोप निकालना है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ एक्स. तो दिस इज़ व्हाट? द एक्सप्लिसिट फॉर्म. नाउ व्हाट हैपन इन इम्प्लिसिट फॉर्म? इम्प्लिसिट फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, राइट. मीन्स इम्प्लिसिटली डिफाइन करते हैं. तो इसमें क्या आएगा कि जैसे सर्कल का इक्वेशन हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो सर्कल का इक्वेशन आ गया. या फिर कोई भी टाइप ऑफ इक्वेशन हो, मैथमेटिकल इक्वेशन ले लो, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो ऐसे अगर इक्वेशन है तो that we called it as the implicit form. Now the question may arise that whether we cannot convert this explicit form into the implicit. Yes, we can convert it. Suppose if we consider y minus mx minus c is equals to 0, तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट. तो अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है फिर, राइट. यहाँ पे भी हम लोग इसे कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू हम लोग ले सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर निकाल देते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, राइट. सो प्लस माइनस. लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? सो y की वैल्यू हमें क्या प्लस माइनस में लेनी होगी. मीन्स अभी कौन सी लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस होगी, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट. सो इट्स बेटर, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है. तो यहाँ पे यूजिंग दिस इक्वेशन इट्स बेटर टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन. बट इससे अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो वो निकलेगा क्या, अच्छे से नहीं निकलेगा. सो दैट्स वाई दिस इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म्स आर डिफरेंट. क्लियर. नेक्स्ट इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म. नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, फंक्शन दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू f of x t. In the form of t we can represent the parametric function. Means एक कोई तो भी पैरामीटर कंसिडर करके एक्स वाई जेड लाइन के हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं. क्लियर. सो y इज इक्वल्स टू एफ वाई ऑफ टी, z इज इक्वल्स टू एफ जेड ऑफ टी लाइकवाइज. सो t इज नथिंग बट द पैरामीटर ओवर हियर. क्लियर. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट the parametric equation for this line, so this is the point, that is p0 point and p1 point. so p0 के coordinates क्या है, x0 x1 सॉरी x0 y0 and p1 के coordinates क्या है, x1 y1 है. ठीक है. नाउ अभी इसकी वैल्यू पैरामीटर हमें कौन सा कंसीडर करना है, t का, राइट. सो t इज इक्वल्स टू 0 to 1 तक हमें कंसीडर करना है. इन बिटवीन ये जो है 0 to 1 उसके बीच में का हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे. तो सपोज tx इज इक्वल्स टू 0.8 कंसीडर करेंगे इस पॉइंट को, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x एंड y, राइट. सो p ऑफ x कॉमा वाई, जिसकी x कॉमा वाई की वैल्यू क्या है 0.8, इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग 1 माइनस टी, दैट इज़ 1 माइनस टी p0, राइट, प्लस t ऑफ p1. क्लियर. तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम लोग x की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पुट करेंगे, और t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0.8 पुट करेंगे. सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम दिस गिवन लाइन. Clear. So this is all about the curves and its representation.